Hello student, today I'm teaching you social science for class 8th and this is your chapter 13, India after independence and new challenges ahead. So this is your chapter number 13 of your history. After getting the independence, the major problem comes in front of Indian leaders. What all those problems they faced on that time, we will discuss in this chapter. Okay? So, the following topics we will cover: challenges before newly independent India, freedom of the French and Portuguese controlled areas, farming of the Indian constitution, reorganization of states, evolving India's foreign policy, journey of Indian democracy since independence, challenges of poverty, casteism, illiteracy, overpopulation, employment, and economic planning. So let's begin with the immediate challenges. So after India's independence, new problems and challenges were there before nation. The partition led to massacres and riots mainly in Punjab and Bengal. Okay? तो हमारे इंडिया ने जब इंडिपेंडेंट गेट किया उसके बाद पार्टीशन एक मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पीपल्स shows their agitations, their riots, ठीक है, उन्होंने दंगा किया and many of the people, especially in Punjab and Bengal, 8 million homeless refugees came to India after losing their entire means of existence. ठीक है, तो 8 million people homeless हो गए और इंडिया में वो आए as a refugee जिनके पास कुछ नहीं था. ठीक है, so there were around 562 states ruled by the Indian princes. तो टोटल जो प्रिंसली जो स्टेट्स थे इंडिया के अंदर वो 562 थे. Annexations of these states in the Indian Union was the major challenges before the nation. तो इतने ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कंट्रोल करना, उनको कंबाइन करना एक मेजर प्रॉब्लम थी. ठीक है, सबको यूनाइट करना एक मेजर प्रॉब्लम थी. सो दीज स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग आइदर इंडिया और पाकिस्तान. तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको बोला गया कि So, under the able and wise guidelines of Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of independent India, most of these states decided to join India. अब इनको मौका दिया गया कि either they join Pakistan or they come in the territory of India. So most of these states decided to join India. तो इन्होंने बहुत से states ने decide किया कि वो India को join करेंगे. The three acceptations were Hyderabad, Junagadh and Kashmir, which had their reservations about joining India. ठीक है. So the Nawab of Junagadh, a small state on the coast of Gujarat, जूनागढ़ के जो नवाब थे जो कि स्मॉल स्टेट है गुजरात के कोस्टल एरिया में, wanted to join पाकिस्तान. ये चाहते थे कि पाकिस्तान में वो मिल जाए. But finally the Nawab went to Pakistan while the people of Junagadh voted in favor of joining India. अब नवाब तो चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, लेकिन वहाँ के जो लोकल पीपल थे they want to remain stay in India. So in case of Kashmir, the ruler was Hindu while the majority of the population was Muslim. अब कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर के जो रूलर थे वो हिंदू थे, लेकिन मेजॉरिटी जो वहाँ पे पॉपुलेशन रहती थी वो मुस्लिम्स थी. तो फाइनली व्हेन कश्मीर वाज अटैक्ड बाय द पठान्स एंड इरेगुलर आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान, द महाराजा ऑफ कश्मीर डिसाइडेड टू जॉइन इंडिया इन अक्टूबर 1947. अब थ्रू द पठान्स के द्वारा या अदर जो मुस्लिम्स थे उन्होंने
कश्मीर पे जिन्होंने हमला किया था पठान थे या अदर जो कश्मीर में जो अटैक हुए थे उसको इंडियन आर्मी ने जाकर के सॉल्यूशन किया और उसके बाद यहाँ के जो राजा थे वो दोबारा से इंडिया में ज्वाइन हुए. दे डिसाइडेड टू ज्वाइन इन इंडिया इन October 1947. So in case of Hyderabad, the ruler agreed to join India when a revolt broke out in Hyderabad and Indian army marched towards Hyderabad. उसके बाद हैदराबाद में भी जो वहाँ के रूलर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ भी रिवॉल्ट ब्रोक हो गया. अब जो वहाँ के राजा थे दे डिसाइडेड दैट दे वांट टू ज्वाइन इंडिया ओनली. ओके, तो इंडियन आर्मी ने वहाँ मार्च किया और हैदराबाद को फ्री किया. Now India freed from French and Portuguese control. The French had been occupying Pondicherry, Karaikal, Mahe and Yanam in South India and Chotanagpur in Bengal. The French withdrawal all these territories by 1954. तो ये जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज थे इन पर्टिकुलर एरियाज में फ्रांस का बोलबाला था और 1954 में इनको बिल्कुल फ्री कर दिया गया. द पोर्टुगीज कंट्रोल्ड गोवा, डामन एंड दिगू, दादर एंड नागर हवेली. Indian army had to move into Goa to help the local people who were fighting for their liberations. Finally, the Portuguese left India in 1961, liberating their Indian colonies. तो गोवा भी, पौंडीचेरी, ये कुछ पर्टिकुलर एरिया थे जहाँ पे अभी भी ये पोर्टुगीज के थ्रू लिबर्टी नहीं थी इनको. तो 1961 में इंडियन आर्मी ने वहाँ जाकर के इन पर्टिकुलर एरियाज को भी लिबर्टी प्रोवाइड करी, फ्रीडम प्रोवाइड करी. नाउ फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल आवर फ्रीडम फाइटर हैड डेवलप्ड अ विजन ऑफ व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. अब फ्री इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम थी कि कैसे इंडियन पीपल्स रहना चाहते हैं, उनका क्या तौर तरीका होना चाहिए. द विजन वॉज दैट ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सर्कुलर नेशन बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल. तो मेन जो फोकस था, मेन जो विजन था वो ये था कि पीपल सोशली, इकोनॉमिकली इक्वालिटी और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें. The vision before the leaders were to build an Indian with a strong and self-reliant economy and a foreign policy based on peaceful coexistence. तो जो मेन विज़न था, जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो इंडियन लीडर्स हैं वो चाहते थे कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सेल्फ रिलायंट बने. ठीक है, द इकोनॉमी शुड नॉट बी डिपेंड ऑन एनी अदर फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. So the lofty vision was expressed through the Constitution of India introduced on 26th of January 1950. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसको 26th of January 1950 में इंट्रोड्यूस कराया गया. The Constitution laid down that India will be a circular democratic republic with a parliamentary system of a government. तो अब हमारी कंट्री के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना जिसका एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बना. ठीक है. There will be universal adult franchisee, that is right to vote for all adult men and women. और एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बनाया गया जिसमें ये बोला गया कि each and every one, a man or the women, having the right to vote if he is adult or if he or she is adult. So India will be a federation with division of power between the center and the state. और इंडिया की जो पावर थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई, सेंटर और स्टेट. It guaranteed all the citizens certain fundamental rights so that they enjoy socio-economic equality and justice. और गारंटी दी गई सिटीजन्स को कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं and with the help of they enjoys the equality and justice. Okay. So Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly. तो जो Constituent Assembly थी, drafting committee थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. Now reorganization of state and administrative challenges. A state reorganization commission was set up in 1953. ठीक है, after independence. So according to its report submitted in 1956, the state were reorganized on the basis of language spoken by the people of the different states.
तो जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया. लाइक सम स्टेट्स हैविंग नेम लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, असम, बंगाल, Orissa, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana, etc. were organized on the linguistic basis. Okay. Now, the evaluation of India's foreign policy. अब foreign policy को कैसे बनाया गया? So, since the ancient period, India has believed in the principle of peace and non-violence. तो बहुत पहले से ही इंडियन जो पीपल्स थे दे बिलीव इन प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति और हिंसा ना करने वाली पॉलिसी थी. तो दीज आइडल्स वर रिफ्लेक्टेड इन अवर फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो. तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें भी वो रिफ्लेक्ट हुआ. The key features of India's foreign policy have been peacefully coexistence between nation and anti-colonialism and disarmament. So India first showed the world her commitment to peace when she signed the Panchsheel Agreement with China. तो जो पहली जो पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया चाइना के साथ, उसमें भी इंडिया ने अपनी जो प्रिंसिपल था, वन इज पीस एंड अनदर वन इज नॉन वायलेंस, वो दिखाई दिया. द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील्स आर, पंचशील में जो मेन 5 मुद्दे थे, पहला था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से वो एक साथ रहेंगे. नॉन एग्रेशंस, एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होंगे. नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, कोई भी इंटरनल अफेयर्स अगर होते हैं कंट्री में तो उसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं करेगा. इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, और दोनों ही आपस में कोऑपरेट करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट आपस में होगी, इक्वालिटी होगी. रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सर्वनिटी, दोनों ही एक दूसरे की भाई बंधुत्व और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके चलेंगे. एक दूसरे की जो भी बॉर्डर्स हैं उसमें किसी को भी हानि नहीं पहुंचने देंगे. तो these 5 principles clearly showed that India stands as a prominent exponent of peace and harmony. तो ये जो 5 पंचशील एग्रीमेंट, जो 5 मेन पॉइंट साइन हुए, इससे ये इंडिकेट किया, इनसे ये इंडिकेट होता है कि इंडिया अपने आप में पीसफुल, शांति और भाई बंधुत्व वाली भावना से रहना चाहता है. नाउ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द लास्ट 50. अब लास्ट 50 में हम अगर चेक करें कि जो डेमोक्रेसी है वो कितनी सक्सेस रही और कितनी फेलियर रही, ये हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट. India, along with the Yugoslavia and Egypt, decided to stay away from the 2 power blocks, the capitalist bloc led by USA and the socialist bloc led by USSR. तो नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर जो 2 मेन पावर थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको हम कह सकते हैं कोल्ड वॉर एरा भी था, शीत युद्ध था, उसमें जो 2 मेन पावर थी वर्ल्ड की, यूएसए अमेरिका एंड यूएसएसआर रशिया, इन दोनों के बीच में द नॉन अलाइन मूवमेंट डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस एंड आर्म रेसेस. तो नॉन अलाइन मूवमेंट बना जिसमें इंडिया भी मेन था, जो कि चाहता था कि मिलिट्री लड़ाई झगड़े ना हो, आर्म रेसेस ना की जाए. इट वांटेड टू क्रिएट पीस, हार्मनी एंड कोऑपरेशन ऑन द ग्लोबल लेवल. और ये इंडिया चाहता था कि शांति से एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेट करके ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ा जाए. इंडिया हैज़ ऑलवेज प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. द फाउंडिंग फादर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट व जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट टीटो ऑफ यूगोस्लाविया एंड प्रेसिडेंट नासर ऑफ इजिप्ट. तो ये जो 3 मेन हेड थे अपने अपने कंट्री के, इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को काफ़ी लंबे समय तक आगे बढ़ाते गए. Now the major problem comes in front of India after independence, that is the socio-economic challenges. तो ये जो socio-economic challenges थे, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि इंडियन लीडर्स were facing on that time. First is overpopulation, okay. Second,
illiteracy, third, casteism, fourth, poverty. Okay, so about all these topics we will discuss in next video. Thank you and have a nice day.